So quantum mechanics is the theoretical science that deals with the study of motions of the microscopic objects like electrons, protons, neutrons, or any other particles that that have both observable wave-like and particle-like properties. It specifies the laws of motions that these objects obey. When quantum mechanics is applied to a macroscopic objects for which we like for which wave-like properties are insignificant, that cannot be shown by the waves characters by the macroscopic particles, the results are the same as those of the classical mechanics. So classical mechanics is based on the laws of Newton's. We can once again see here in the whiteboard that already we have learned in previous classes. So I shared this whiteboard once again. See, this is the mechanics. So mechanics means related to motions, pertaining to motions of the particles. It is mainly of two types. One is classical mechanics, second is quantum mechanics. Classical mechanics is based on laws of Newton's or motion. It is applied for the macroscopic particles, while quantum mechanics is based on the dual nature of matter and Heisenberg's uncertainty principle. It is applicable only for microscopic particles, right? जैसे अभी हम लोग NCERT के पैराग्राफ्स में पढ़े तो वहाँ मिला क्या कि हम लोग मैक्रोस्कोपिक पर यदि क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो एग्जैक्टली सेम आता है, दैट इज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स. जो क्लासिकल मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशंस में रिजल्ट आता है, सेम रिजल्ट्स क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आते हैं, राइट? विथ सम स्टूडेंट्स आर इन लॉबी, आई एडमिट. Sure, no. For that I will. So once again, classical mechanics based on laws of Newton's or motions, and quantum mechanics is based on the dual nature of matter and Heisenberg's principle. It is applicable for macroscopic, while quantum is microscopic particles. Schrodinger proposed equations related to the wave nature of the particles or electrons. Here microscopic particles like electrons is used. So according to him, Carrot over H psi is equal to E psi, where H is the Hamiltonian operator and E is Laplacian operator. So in his equations he taken psi as the wave function. So ये ऑर्बिटल्स वेव फंक्शन से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं. वाइल साइन स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो साइन और साइन स्क्वायर को वेव फंक्शंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्रेजेंट्स किए उन्होंने. तो जो वेव्स रहता है इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर उसको साइन रिप्रेजेंट्स करता है. तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस देखेंगे तो एक्स वाई जेड के एक्सिस में ये काफ़ी बड़ा सॉल्यूशंस मिलेगा. सपोज ये हाइड्रोजन एटम्स के लिए भी करें तो एक बड़ा सा इक्वेशंस आएगा जो हम लोग को सिलेबस में नहीं है, राइट? बट हम लोग का जो सिलेबस में हम लोग यहाँ देख सकते हैं वो सिर्फ एस आई इक्वल टू ई साई है, जिससे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशंस करते हैं. सो क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली बाय 1926 बाय वर्नर हाइजेनबर्ग एंड एडविन श्रोडिंगर. However, we shall discussing the quantum mechanics which is based on the idea of wave motion. तो particles का wave motion पर ये completely based है. The fundamental equations of quantum mechanics, here see in the next page, that is H sin equal to E sin, was proposed by Schrodinger. तो जो fundamental equations था डिफरेंट एक्सिस में वेव फंक्शंस का साइन के फॉर्म में, उसको श्रोडिंगर ने रिप्रेजेंट किया एंड इट वॉन हिम द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1933. तो ये कितना बड़ा रिसर्च था कि सबसे बड़ा प्राइज, साइंस का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज होता है, तो वो नोबेल प्राइज विनर बने. क्लियर?
This equations which incorporates wave particles duality of matter as proposed by de Broglie is quite complex, and knowledge of higher mathematics is needed to solve it. So you will learn the solutions of the different systems in higher classes. तो अलग अलग वेव फंक्शंस अलग अलग डायरेक्शंस में जो होगा उसका सॉल्यूशंस करने के लिए, और श्रोडिंजर का हायर इक्वेशंस हम लोग जो यूज़ करेंगे वो हायर क्लासेस के लिए दिया हुआ है, सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट पड़ता है. तो हम लोग को 11th में क्या पढ़ना है? सो इन क्लास 11 इट इज़ गिवन हियर, यू कैन सी इट इज द पैराग्राफ ऑफ NCERT. सो इन दिस पैराग्राफ इट इज रिटन for a system such as an atom or a molecules whose energy does not change with time, the Schrodinger equation is written as H psi equal to E psi, right? So it one students in lobby. So does not change with the time. The Schrodinger equations is written as H psi equal to E psi, where H is the mathematical operators called Hamiltonian operators. Schrodinger gave recipes of constructing this operator from the expressions for the total energy of the system. The total energy of the system takes into account this kinetic energy of all the subatomic particles like electrons and nuclei. Attractive potential between the electrons and the nuclei and repulsive potentials among the electrons and nuclei individually. So solutions of this equations gives E and psi. तो इसका सॉल्यूशंस हम लोग आगे हायर क्लासेस में करेंगे, ये सिलेबस में नहीं है. तो सिलेबस में जो है वो H psi इक्वल टू E psi है. इसी के बेसिस पर हम लोग हाइड्रोजन एटम्स एंड श्रोडिंजर इक्वेशंस को यहाँ सॉल्व करते हैं. So when Schrodinger equation is solved for hydrogen atoms, the solutions gives the possible energy levels of electron can occupy and the corresponding wave functions is psi. तो theoretical में वही सारा solutions का main terms दिया हुआ है, but जो exact forms of solutions आया that is the 4 set of quantum numbers वहाँ से निकला उसको solve करने के बाद. So these quantized energy state and corresponding wave functions which are characterized by a set of 3 quantum numbers, that is principal quantum number small n से represent करते हैं, azimuthal quantum number L से represent करते हैं, and magnetic quantum number जिसको M या ML से represent करते हैं. So this is the actual solutions of Schrodinger wave equations for hydrogen atom. But ये सब के लिए सेम होता है. यहाँ हाइड्रोजन 11 में दिया हुआ है, हम लोग इसके लिए दूसरे एटम्स भी चूज कर सकते हैं, वैल्यू सेम रहेगा. सो दीज 3 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स अराइजेज एज ए नेचुरल consequence in the solutions of the Schrodinger equations. When an electron is in any energy state, the wave functions corresponding to the energy state contains all informations about the electrons. The wave function is a mathematical function whose value depends upon the coordinates of the electrons in the atom and does not carry any physical meaning. Such wave functions of hydrogen and hydrogen-like species with one electron is called atomic orbitals. तो जो एक इलेक्ट्रॉन्स होगा या हाइड्रोजन्स होगा वो सारे को हम लोग मिला करके इलेक्ट्रॉन्स के साथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रिप्रेजेंट्स करेंगे. तो वेव्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स क्या है? वेव, इट इज़ अ वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पार्टिकल्स नहीं, वेव्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट्स किया है. सच वेव फंक्शंस pertaining to one electron species is called one electron system. अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज को वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिया गया है. अदर एटम्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स लिया गया है, जैसे हीलियम डायरेक्टली हीलियम का निकालेंगे या लिथियम +1 का निकालेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा. ठीक है, तो इससे ये चारों सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आया जिसको हम लोग
अपने नोट्स में देखते हैं जो लोग प्रीवियस क्लास ग्रुप्स में भी सेंड्स किए थे. So see the notes I have saved it in my documents. So I am opening it from my documents. Wait, lobby में तो कोई नहीं है. So structure of atom part 2. This notes I sent in the group. जिसके पास नहीं होगा दे कैन पर्सनली व्हाट्सएप में आई विल सेंड देम. सो बोर्स मॉडल से दिए हुए हैं जो सिलेबस में है, क्योंकि जो रेस्ट पार्ट है वो सारे सिलेबस से आउट है. तो जो सिलेबस में है उसी से हम यहाँ से स्टार्ट किए, यही सिलेबस में है. पहला पार्ट जो है वो पूरा सिलेबस से रिलेटेड है इस साल के लिए. ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ये सब सिलेबस में नहीं है. सो बोर्स मॉडल से स्टार्ट है, बट हम लोग को स्टार्ट करना है क्वांटम मैकेनिक्स से, राइट. सो क्वांटम नंबर्स आई एम मूविंग हियर इन द नोट्स. यहाँ से हम लोग कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स. इम्पोर्टेंस ये सब हम लोग पिछले क्लास भी कर चुके हैं. क्वांटम, हाँ, क्वांटम नंबर से हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दीज आर द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n, सेकेंड इज एजिमुथल क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. तो इस तरह से हम लोग इसका 3 नाम देते हैं. एजिमुथल भी, सेकेंडरी भी बोलते हैं, सब्सिडरी भी बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स भी बोलते हैं. क्लियर. तो अलग अलग नाम है बट एग्जैक्टली वैल्यू सबका सेम है. एंड द थर्ड इज द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो हम लोग m या ml से रिप्रेजेंट्स करते हैं. ठीक है, तो यहाँ एक प्रिंट मिस्टेक है, m1 लिखा गया है, इट विल बी ml. ठीक है, तो इसको हम स्मॉल l कर देते हैं. So now it is correct. तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे m और ml, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. एंड द लास्ट वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर. सो दीज आर द 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स. अब कौन क्या क्या बताता है वो हम लोग यहाँ डिटेल से स्टडी करेंगे, जो नोट्स में भी दिया हुआ है, राइट. तो वंस अगेन मूविंग टूवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड. सो क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ से दिया हुआ है. क्वांटम मैकेनिक्स के बाद हम लोग क्वांटम नंबर्स कर रहे हैं. तो क्वांटम मैकेनिक्स का प्रीवियस हम लोग पिछले क्लास डेफिनेशंस कर चुके थे. इट इज़ थियोरेटिकल साइंस विच इज़ based on the dual nature of matter and uncertainty. Principal quantum mechanics model, quantum mechanical model of atoms starting from quantum numbers. So it is a set of 4 numbers which gives us total idea or informations about an electron. So these are the 4 sets. First is the principal quantum number. We can see this one is principal quantum number represented by n. This one is azimuthal quantum number represented by l. थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n टेल्स अबाउट द ऑर्बिट्स. ये ऑर्बिट्स के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन हम लोग को देता है, राइट. और मेन एनर्जी लेवल, ऑर्बिट्स इज ऑल्सो रिगार्डेड एज मेन एनर्जी लेवल. तो ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेन एनर्जी लेवल्स. तो ऑर्बिट को हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ मेन एनर्जी लेवल. एनर्जी लेवल जो सेल है, मतलब के, एल, एम, एन, दीज आर द मेन्स एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स. द सेकेंड वन एजिमुथल क्वांटम नंबर एल. सो इट्स टेल्स अबाउट द सेकेंडरी एनर्जी लेवल और सबसेल्स. तो सबसेल्स क्या होता है, यू नो, सबसेल्स इज द ऑर्बिटल्स. तो ये ऑर्बिटल्स हम लोग जनरली एस, पी, डी, एफ एंड जी यूज़ करते हैं. एस शार्प को रिप्रेजेंट्स करता है, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज एंड एफ फंडामेंटल्स. सो दीज आर एस, पी, डी, एफ आर नेम्ड विद द
सीरीज ऑफ देयर स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की सीरीज से इसका नाम दिया गया है। ये सबसेल्स के बारे में बताता है। थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स इज टेल अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इन ऑर्बिट अंदर ऑर्बिटल्स। तो एटम्स के अंदर ऑर्बिट्स में, ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस जगह पर रिसाइड्स कर रहे हैं, इट टेल्स अबाउट द, इट टेल्स बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। एंड द लास्ट वन इज द स्पिनिंग क्वांटम नंबर। तो ये स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर। सो ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स, वन मोर डिफरेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्बिट्स क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है? तो k l m n ये सब ऑर्बिट्स होंगे। पाथ, सर्कुलर पाथ वेयर द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स around the nucleus, and orbitals is a three dimensional space where the probability of the finding of electron is maximum up to 95%. so this is orbits and orbitals, right? अब किसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सो सी वन बाय वन इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वांटम नंबर्स और व्हाट इज टेल। तो सी द फर्स्ट, तो यहाँ एक टेबल दिख रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, बट इसमें के और एल दो ही सेल तक दिया हुआ है। सो फर्स्ट के सेल एंड सेकेंड एल सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 and 2 होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? तो 2n² फॉर्मूला लगा करके 2 and 8 निकाल सकते हैं। फॉर k = 1 और l = 2 एजिमुथल क्वांटम नंबर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो k के लिए मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा मतलब 0, मतलब 1s2। और l के लिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1s2 and 2p6 and 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ऑर्बिटल्स में? 2 × l+1 वेयर l इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स m फॉर डिफरेंट, ये क्या बताता है? तो डिफरेंट पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशंस को बताता है मैग्नेटिक, एंड स्पिनिंग, स्पिन की बताता है। तुम लोग इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं ऑर्बिटल्स को। जब L रहेगा तो 1s, तो 2s तो रहेगा, 2s के साथ 2p भी रहेगा, तो 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज कॉल्ड px, py एंड pz, राइट? दैट इज कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स ऑफ p। नाउ सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। क्या क्या इन्फॉर्मेशंस देता है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स गिव्स अस फर्स्ट कि डिस्टेंस कितना है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितने एवरेज डिस्टेंस में। तो यहाँ से हम इसको यदि कॉपी करें, तो सी आई एम कॉपिंग दिस एंड पेस्टिंग इन माय वाइट बोर्ड। सो सपोज हम इसको वाइट बोर्ड में पेस्ट कर रहे हैं। सो हम पेस्ट कर रहे हैं इसको यहाँ। सो नाउ कैन सी, ये एवरेज डिस्टेंस बताता है। फर्स्ट सी, ये एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रॉन्स, ये इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है। सेकेंड, इट कम्प्लीटली डिटरमिन्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। तो ये एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का टोटल एनर्जी बताता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए। थर्ड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल सेल इज गिवन बाय 2n²। ये यहाँ गलती है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n², दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है?
So maximum number of electrons in an orbitals, सॉरी इन एन सेल हो जाएगा। तो ये 2n² फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, इसे निकाल सकते हैं। तो दिस इज द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। थर्ड मतलब एवरेज डिस्टेंस न्यूक्लियस से जो एटम्स का है वो बताता है, कितने सेल्स हैं, सेल नंबर 1 होगा, 2 होगा, k होगा, l होगा, m होगा, ठीक है। सेकेंड ये क्या बताता है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। एंड थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल सेल। प्रिंसिपल सेल्स में कितना होगा, ये 2n² से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ 2n² सही लिखे हैं, वहाँ वो पेस्ट किए इसलिए n के नीचे 2 आ गया था। सो एग्जैक्टली इट विल बी 2n² एज आई शेयर्ड इन द नोट्स। तो मोबाइल में नहीं देख रहा होगा उसको जूम करके देख सकता है, ठीक है। सो यू कैन जूम योर स्मार्टफोन so that it can be easily seen by you. Now moving toward the second one, azimuthal or subsidiary or angular quantum number, that is L. तो ये क्या बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में। पहला ऑर्बिट्स बताता था, मेन एनर्जी लेवल, ये सेकेंडरी एनर्जी लेवल्स ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो इट इज फाउंड दैट द स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स कंटेन्स नॉट ओनली द मेन लाइन्स बट there are many lines also presents. This number helps to explain the fine electrons in the spectra. तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग s का वैल्यू, n का वैल्यू यदि 0 1 2 3 0 तो नहीं रहता है, 1 2 3 4 होगा। तो l का वैल्यू क्या होगा, तो l इक्वल टू हो जाएगा 0 to n-1, जहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और 0 जब भी होगा उसका वैल्यू तो वो s होगा, 1 होगा तो p, 2 होगा तो d, 3 होगा तो f, राइट। तो ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा या फॉर्मूला रखो। एजिमुथल क्वांटम नंबर्स गिव्स अस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। सो सी द इन्फॉर्मेशंस गिवन बाय दिस क्वांटम नंबर। द नंबर ऑफ सबसेल्स प्रेजेंट इन द मेन सेल, मेन सेल्स में कितना सबसेल्स है ये बताता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सबसेल, तो एंगुलर मोमेंटम भी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द वेरियस सबसेल्स, ये सबसेल्स का एनर्जी को बताता है। The shapes of the various subcells present within the same principal cell, तो सेम प्रिंसिपल सेल्स में कौन सा सबसेल्स होगा, उसका क्या शेप्स होगा, ये इंफॉर्मेशन हम लोग को देते हैं, राइट। एंड देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जानने के पहले हम लोग थोड़ा सा एनिमेशंस को देखते हैं जो हम लोग प्रीवियस क्लास स्टार्ट किए थे, राइट। तो जहाँ तक हुआ था उसके आगे से ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सो हम लोग प्रीवियस क्लास में ये सारा किए थे। सो वे टेक ऐड है आफ्टर दिस ऐड। सो ये साइन एंड साइन स्क्वायर है, दैट इज वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। हम लोग आज यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सरफेस बाउंड्री डायग्राम। Maximum, that is about 90%. The boundary surface diagrams define the shapes of various orbitals. So we can see the boundary surface diagram of S, P, D and F subcells. The surface determines the shape of the orbital. The boundary surface diagram for S orbital is always a sphere centered on the nucleus, irrespective of the principal shell to which the orbital belongs. This is because for a given value of radius, the probability of finding the electron in the s orbital of a principal shell is found to be identical in all directions. Therefore, the shape of s orbital
is a symmetric sphere. सो इट इज स्फेरिकल, मतलब सिमेट्रिक स्फीयर मतलब क्या है, ये सिर्फ स्फेरिकल्स में आ जाएंगे. Are symmetrically spherical. The shapes of the s orbital belonging to different principal shells differ in two aspects. 1. The number of nodes, and 2. Size and energy. As the size and energy of the principal shells increases with increase in the value of n, their orbitals also follow the same trend. For example, the size and energy of 4s is greater than 3s, followed by 2s, and then 1s. Let us now discuss the shape and orientation of p orbitals. The boundary surface diagram for the p orbital indicates the presence of two lobes that lie on either side of the plane that passes through the nucleus. So this is the dumbbell shape of p orbitals. So in dumbbell shapes there are two lobes in both sides, but in the nucleus, in the center, probability of electron finding is very low. That is also called nodes. The probability density function is 0 on the plane where the two lobes touch each other. Since the azimuthal quantum number L is equal to 1 for p orbital, the magnetic quantum number ML has values -1, 0, and +1, which represent three different orientations for p orbitals along the three axes. The shell is identical. However, like s orbitals, the size and energy of p orbitals increases with increase This in is the the energy principal. diagrams. तो ये एनर्जी डायग्राम है जिसमें से हम लोग देख सकते हैं एस पी डी एफ का एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीजेस. Which in turn is greater than 3p followed by 2p as shown. तो ये सबसे कम एनर्जी होगा सबसे नीचे वाला में, और जैसे ही वो ग्रेटर इंक्रीज ऊपर जाएगा तो वो एनर्जी बढ़ेगा. जैसे 1s से थोड़ा ज़्यादा 2s, 2s से स्लाइटली ग्रेटर 2p, एंड 2p से स्लाइटली ग्रेटर 3s, 3s से स्लाइटली ग्रेटर 3p, एंड so on 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, and finally we reach the maximum energy state, that is called 4f, and energy one increases. The number of radial nodes for p orbitals is given by the expression n-2. Therefore, number of radial nodes is 0 for 2p orbital, 1 for 3p orbital, 2 for 4p orbital, and so on. In addition to these radial nodes, for np and nd orbitals, the probability density function is also 0 at planes passing through the nucleus. These planes are called nodal planes. So what is nodal planes? That passes through the center or nucleus of the lobes of the orbitals, where the probability of finding an electrons is 0, almost नहीं के बराबर होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे, राइट. Number of nodal planes for a p orbital is 1. That is, the plane which passes through the origin at which electron probability of finding an electron is 0 is called a nodal plane. So वो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 होता है वो नोडल प्लेन्स आ जाते हैं. The nodal plane for py orbital lies along xz plane. Nodal plane is also called angular node, and number of angular nodes for a p orbital is equal to the value of azimuthal quantum number L. So nodal ये फॉर्मूला होता है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इक्वल टू एजिमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज L. तो जितना L का वैल्यू होगा वही एंगुलर नोड्स का वैल्यू होगा. मतलब सपोज हम लोग 2p में एंगुलर नोड्स निकालना है तो p इक्वल टू तो 1 होते हैं, तो L का वैल्यू 1 हो जा रहा है. सो फॉर 2p एंगुलर नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इक्वल टू 1, राइट.
plasmatal quantum number L is equal to 2. Therefore, the number of possible orientations given by the magnetic quantum number ML is 5, corresponding to ML is equal to -2, -1, 0, +1, +2. The boundary surface diagrams pertaining to these orientations, designated as dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square are तो ये shown. डी ऑर्बिटल्स के लिए हम लोग देख सकते हैं उसका जैसे ऑर्बिटल्स का शेप होता है दैट इज डबल डम्बल शेप. सो डबल डम्बल का ओरिएंटेशंस पहला हो जाएगा डी एक्स वाई, सेकेंड डी वाई जेड, थर्ड डी जेड एक्स एंड फोर्थ वन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो उसका शेप थोड़ा अलग होता है, देख सकते हैं हम लोग ये अलग प्लेन्स में रहते हैं. एंड द लास्ट वन ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, डी जेड स्क्वायर, मतलब एक ही प्लेन में दोनों ही ऑर्बिटल्स लोकेटेड होंगे. क्लियर? जिसे डायग्राम में हम लोग देखते हैं. 4d orbitals, which are different from the fifth orbital, dz square. The shape of dz square is donut shape. All the 5d orbitals belonging to a principal shell have the same energies. The signs and energies increase with increase in the principal quantum number. तो एन पर डिपेंड्स करता है एनर्जी, एन जितना बढ़ेगा उतना एनर्जी बढ़ेगा. The size and energy of various d orbitals is 5d greater than 4d, which in turn is greater than 3d. So time is almost going to over, so class will automatically off now. d orbitals is given is 0 for 3d orbital, 1 for 4d orbital, and so on. On the other hand, the number of angular nodes is equal to the value of L, that is 2. Hence, 2 angular nodes exist for a d orbital. For example, on dxz orbital, there are 2 nodal planes passing through the origin and bisecting